ಯಾವ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ हिंदी में बोला इंग्लिश में कन्नड़ हिंदी में कन्नड़ में बोलिए ಕನ್ನಡ ನಗೋ कन्नड़ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪುತ್ಥಳಿ ಎದುರುಗಡೆ ಏನು ನಾವು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜನಮೆಚ್ಚಿದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಸೀಳಿನ ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು 2 ವರ್ಷ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಮಹಾ ಅಪರಾಧ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಭಾರತ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಏನು ಅವರ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿಮಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರು ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೋವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ 4000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದ್ದ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿಯನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ನೋಡಲಾರದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರಂದರೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ? ಇದರ ದೊಡ್ಡ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಅವರ ಅನರ್ಹತೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, 8 ವರ್ಷ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂದರೆ ಆಗದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವರ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಟಿಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ದೇಶ ರಾಜಕಾರಣ ಭಾರತ ದೇಶದ 75 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಲಾಗು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕಡ್ದವ್ರು ನೀವು. ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಹಿಟ್ಲರ್ ಶಾಹಿ ದರ್ಬಾರ್ ಇದು. ಹಿಟ್ಲರ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ತಾಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಜನ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಹಿಂದಿದೆ. ಸಂಖ್ಯಾತ ಕೋಟ್ಯಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಅವರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಒಂದು ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ತಡೆ ಹೊಡೆದೇ ಹೋದರೆ, ಹಿಟ್ಲರ್ ಶಾಹಿ ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಹೋದರೆ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಪ್ಪು, ಈ ನಿರ್ಣಯ ಭಾಳ ತಪ್ಪು, ಇದು ಅನ್ಯಾಯ ಇದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನ ಏನು ಕೋರ್ಟಿನ ಸಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೂಡ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಗಾಂಧಿ ಮೂರ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. अस्सलाम वालेकुम। आज गुलबर्गा में जगत सर्कल गांधी स्टैचू के पास कांग्रेस प्रोटेस्ट करे, हम लोग सब जने धरना करे। कनिष मैडम और अध्यक्ष हमारे आलम प्रभु सर, जैसा कि राहुल गांधी जी के नाम पे बेइंसाफ धब्बा लगाए हैं। राहुल गांधी जी क्या सवाल करें आपको? सिर्फ इतना पूछे कि मोदी जी को कि ये कहाँ से करप्शन आया, कि कहाँ से इतना ये बड़ा बोलो, तो आप उनको सवालों का जवाब नहीं दे के उनके ऊपर आप एग्ज़ाम लगाए। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ मोदी सरकार को कि आप बेबात बेधड़क हर मुसलमान के ऊपर, हर इंसान के ऊपर आप जो धब्बे लगाते हैं, कि जैसे कि हर वो मसले के ऊपर, अजान के मसले के ऊपर और हिजाब के मसले के ऊपर, हिंदू मुस्लिम के मसले के ऊपर और गौ झटका कट के मसले के ऊपर बेधक, और जैसा कि सी एनआरसी के बारे में आप जो आपके कार्यकर्ता हो, आप हो जो ज़बान को रोक नहीं लग के जो आप बोलते हैं, तो आपको कैसा हम एग्ज़ाम लगाना चाहिए? आपके ऊपर कौन सा आरोप लगा के आपको अंदर करना चाहिए? हमारी गलती है जो हम आपको गादी पे बिठाए मोदी जी, क्योंकि जब शाहीन बाग में जब प्रोटेस्ट हो रहा था तब आप डायरेक्ट बोले थे सब को गोली से शूट करे, बल्कि वो बारे में कैसा आपको ये करना चाहिए? आज हमारे कपड़ों से लेके और कांग्रेस की बेवा औरत बोल के बोले आज कांग्रेस की, तो इतने बड़े बड़े आप हमको आरोप लगाए, तो हम आपको किस आरोप में आपको गिरफ्तार करना चाहिए मोदी जी? आप जो आपके कार्यकर्ता है, आपके हर कोई कार्यकर्ता जबान के अंदर रोक नहीं है, किसी को भी बोल सकते हैं, किसी के दिल पे चोट रह गई जैसी बात करते हैं कि हम कांग्रेस के अध्यक्ष है, हमारे अंदर स्वाभिमान है, हम राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, सबका हम स्वाभिमान रखते हुए हम उनके इस पे चलते हुए हमारी जबान पे रोक था। आज हमारे भाई राहुल गांधी के ऊपर बात आई तो हम कोई महिला हो, कोई आदमी हो, हम चुप नहीं बैठेंगे। भाई राहुल गांधी के साथ हम बहनें हैं। आज हम रोज़ा रखते हुए भी आज हम गुलबर्गा में हम प्रोटेस्ट करे हैं, तो भाई राहुल गांधी के लिए प्रोटेस्ट करे हैं। उनका जो भी है, जो भी बेनाम एग्जाम है, उन्होंने गलत कुछ नहीं बोले। आप अडानी अंबानी आपके रिश्तेदार लगते हैं, जो पूरा कर्नाटक का पैसा
पैसा जो उनके झोली में भरते हैं, आम जनता का पैसा लेकर उनके झोली में भरते हैं। जैसा कि आप वादा करे थे हर महीना 15,000 रुपये अकाउंट में आएगा, पहला किस्त आपके ऊपर, ये हर इंसान के ऊपर धोखाधड़ी करे आप, हर मुसलमान हिंदू भाई के ऊपर हर महीना 15,000 का धोखाधड़ी करे, गैस सिलेंडर के बारे में धोखाधड़ी करे, हर कोई बेघर नहीं रहेगा बोल के बोले उसके बारे में धोखाधड़ी करे, एजुकेशन के बारे में धोखाधड़ी करे। आज हम लोग मुसलमान लोग एजुकेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे 4% निकाल लिए आप लोग, तो ये 4% निकालने की वजह क्या है आपकी? आप 4% की जगह आप हमारे पास इतनी ताकत है कि हम 10% वापस लिए। आज की बार हमारी सियासत कांग्रेस ही होगी और सबको मालूम पड़ रहा है कि बीजेपी सरकार क्या करती है और क्या नहीं। हर कोई एक कार्यकर्ता को आप ठहरा करते हैं अजान के मसले में, झटका कट के मसले में, हिजाब के मसले में, अरे कांग्रेस विधवा के मसले में, ये क्या है आपका? हमारे पास कोई ये नहीं है बोलते क्या? राहुल गांधी भाई के हम साथ है, प्रियंका दीदी के साथ है, सोनिया गांधी माँ के साथ है, हम लोग हर किसी के साथ है, किसी को कुछ नहीं होता। वापस से हमारे राहुल गांधी को जो था वो वहाँ पे लीजिए, आपके सिर्फ 2 महीने बचे हैं, इसके बाद देखिए कांग्रेस की सीट आएगी, हम सब आपके साथ है राहुल भाई, आप कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम आज कांग्रेस पार्टी के तरफ से हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं महात्मा गांधी स्टैचू के पास। राहुल गांधी का जो मेंबरशिप अननेसेसरी जो कोर्ट से 2 साल ये उनको पनिशमेंट देने के बाद विथिन 24 आवर्स में उनका मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई करता है ये गवर्नमेंट। तो उनको डर हो गया राहुल गांधी से, जो सही बोलते हैं ना उनको पार्लियामेंट में रहने नहीं दे रहे उन्होंने, जो उनके अपोज कौन बात करते उनको यही कर रहे हैं उन्होंने। ऐसा जो बीजेपी का रवायत चल रहा है, ये बीजेपी गवर्नमेंट कभी भी उनके शेल्फ नो आयच नहीं, कभी भी ऑपरेशन कमल करके हमारे एमएलएस को परचेज करके चुनाव गवर्नमेंट बनाए सो है। उनका जो भी कर रहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट हो पूरा इलीगल काम कर रहे हैं। ये देखो माइनॉरिटी का 4% निकाल ले तो भी माइनॉरिटी के लीडर्स क्या बात कर रहे हैं वहाँ बीजेपी में रेस वाले, मुंह बंद कर लेके बैठे, उनको शर्म नहीं? बात करो, पूछो कहीं क्यों निकाल रहे, बल्कि बीजेपी में है तुम्हारे लीडर को पूछो, नहीं तो छोड़ के बाहर आओ। कहीं को मुंह में क्या रख लिए, नहीं पूछ सकते वो लीडर को, कहीं को निकाले बोल के तुम्हारे लीडर को न पूछना, क्यों निकाल रहे 4%? हम भी बीजेपी में है बोल के पूछने का ताकत नहीं तुम्हारे पास, ताकत रहे तो बाहर आ जाओ, नहीं तो नहीं पूछने का आपके पास ताकत नहीं तो बाहर आ जाओ। आप बीजेपी में है, हम भी बीजेपी में है बोल के माइनॉरिटी बोलते क्या कर रहे हैं बीजेपी में रह के? मैं उनको ये सवाल कर रहा हूँ, बीजेपी में जो है माइनॉरिटी लीडर वो लोगों को मैं उनको सवाल कर रहा हूँ, पूछो नहीं तो बाहर निकलो, पूछ के पहला कैसा था वैसा करने लगाओ, नहीं तो बाहर निकलो। ये मेरा डिमांड है उनको माइनॉरिटी। घर से बाहर निकाले राहुल गांधी जी तो उसके बारे में क्या चाहिए? राहुल गांधी को घर से निकालना, हाँ नहीं, ये उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट विथिन 24 आवर्स में उनका मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई करते, आज फिर उनके बंगला खाली करना बोल के नोटिस सर्व करे। ये क्या है? ये पूरा डिक्टेटरशिप चल रहा है मोदी का। वो जो हिटलर कैसा कर रहा है ना ऐसा एक यहाँ आता है कर्नाटक में आता बोले तो रोड शो बोले तो 2-2 दिन दिखाते, 2-2 दिन। फर्स्ट डे पूरा वही देखना, कौन सा चैनल चालू करे थे वही पूरा शाम तक देखना, नेक्स्ट डे भी वही देखना। क्या है ये? पूरा चैनल को भी पूरा परचेज करे, लेकिन राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, कहाँ तो एक झलक दिखाते थे बंद, उसको दिखाने का नहीं। ऐसा थर्ड क्लास गवर्नमेंट ये इनके बीजेपी की जो लीडर्स है, ऐसा उनका ये हिटलर के कैसा चला है वैसा चला रहे। ये आगे का अब चुनाव आ रहा है, ये आगे चुनाव में उनको लोग बताते हैं उसको कैसा करना। हम राहुल गांधी के साथ में है। हम जो राहुल गांधी एक नेक्स्ट मंथ हम पूरा भारत जय भारत बोल के हम सत्याग्रह चालू कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ से। राहुल गांधी पूरे ऑल इंडिया में पूरा राहुल गांधी अपोजिशन हर पार्टी भी उनके सपोर्ट में है। ये बीजेपी का गवर्नमेंट जो मोदी जो कर रहे हैं उसके खिलाफ पूरे ऑल अपोजिशन पार्टीज हमको सपोर्ट कर रहे हैं। हम राहुल गांधी के साथ में है पूरा कांग्रेस पार्टी, और अपोजिशन पूरे लोग भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं। आगे दिन में मालूम होता है इनको क्यों बोले तो इन्होंने क्या कर रहे हैं। पूरा डेमोक्रेसी
डेमोक्रेसी ही नहीं है। अब बीजेपी हाँ कहाँ है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं रहता, इसीलिए वो लोग उनको नेक्स्ट इलेक्शन में उनको सबक सिखाते। अभी इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है सर, 2 महीने में हाँ इलेक्शन है। हाँ तो कांग्रेस की आप आज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, तो कैसा तैयारी है सर इलेक्शन? डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। जी सर। हाँ भाई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे पास कभी भी तैयारी है। हमारे पास अभी 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज डिक्लेयर नहीं हो गए कैंडिडेट, बाकी के तो हो गए। अभी 3 कैंडिडेट अब शार्टली कर देते हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन में हमारे इलेक्शन कमेटी है ना, वो मीट कमेटी में फाइनल कर देते हैं। और तैयारी कैसे है सर? तैयारी जो हमारे जो 4 अब डिक्लेयर करें हम हमारे पार्टी की तरफ से 10 kg चावल, 3,000 महीना 3,000 और 2,000 औरतों को, और जो घर के है और बड़े उनको 2,000 लेडीज़ को, और अन्य पूरे हर ग्रेजुएट्स को महीना 3,000, डिप्लोमा ग्रेजुएट्स को 15,000। अभी फार्मर्स का भी आ जाता नेक्स्ट शार्टली, वो भी ऐसा आ जाता हमारा जो बिजली का? हाँ बिजली 200 यूनिट्स बिजली भी, ऐसा हमारे प्रोग्राम्स है। हम पहले से भी अच्छा गरीबों के साथ में कभी भी गरीबों को हेल्प करते चाहे अभी भी गरीबों के वास्ते हमारे पार्टी है। ओके ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜಗದೇವ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಸಾಹೇಬರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಆದೇಶದಂತೆ AICC KPCC ಅವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಇವತ್ತೇನು BJP ಸರ್ಕಾರದ ಭ್ರಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನು ಸಂಸದ ಪದವಿಯಿಂದ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿ ಅವರಿಗೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ನೀತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಪುತ್ಥಳಿ ಎದುರು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಶಾಂತಿಯುತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕರು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತದ, ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಿಡಿದ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಟ್ಟ ನೀತಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಜಾತಿಗಳ ನಡುವೆ, ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ, ಭಾಷೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಜನಾಂಗದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಭ್ರಷ್ಟ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೋಮು ಧ್ರುವೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಒಡೆದಾಡುವ ನೀತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅವರಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲ್ಲ. ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಮದುವೆ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರರ ನಡುವೆ ಜಾತಿ ಜಗಳ ಹಚ್ಚಿ ಕೋಮು ಧ್ರುವೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಕಪ್ಪು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತಂದು ಮಾಡಿರೋಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭ್ರಷ್ಟ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 40% ಕಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಈ ಭ್ರಷ್ಟ BJP ಸರ್ಕಾರ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಗೊತ್ತದ, ಅಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಂಸತ್ನಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕೆಟ್ಟಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುವಂಥ, ಮನಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುವಂಥ, ಈ ದೇಶದ ಜನಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಸೆ ಪಡದೆ ನಿರಂತರ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರವರೆಗೂ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು, ಹಿಂದುಳಿದವರನ್ನು, SC ST OBCಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವ್ರನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಮಾಡಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ತುಂಬ ಅವರು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಾಷಣನ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬೇರೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಂಥ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಿಂದ ಅವರನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ 2 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಇದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವ್ರು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇಡೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರು ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಕೆಟ್ಟ ನೀತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಮಾತಾಡಿ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ ಹಾಕೋ ಮೂಲಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು
ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಂದು ಅದೇ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಕುಂದಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಈ ದೇಶದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರಜೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಭಾಳ ಜರೂರತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದು ಸ್ಪಷ್ಟ ರಾಜಕೀಯ ನಿಲುವನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಡೆಸಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನು ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ AICC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಏನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ. आज हम लोग गांधी स्टैचू के सामने आके जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये एक मैसेज है क्योंकि गुलबर्गा की ज़मीन से कई मुद्दों की आवाज़ें उठे हुए हैं और कई मुद्दों के पीछे जो बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने काम किए हैं, अवाम के हित के अंदर गलत फैसले लिए हैं, गुलबर्गा की सरजमीन से वो फैसलों को उन्हों को चेंज करना पड़ता है। तो आज गांधी स्टैचू के सामने आके जो हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये क्लियर कट मैसेज है कि राहुल गांधी जी के जो उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से स्थगित किया गया है, इसका कारण क्या है? सिर्फ ये है कि उन्होंने अदानी के ख़िलाफ़ उन्होंने सवाल पूछे हैं मोदी जी को जो सवाल पूछे गए थे उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसका सबसे बड़ा कारण ये है। और दूसरा कारण ये है कि कोलार में जो राहुल गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था, वो गुजरात के अंदर एक आदमी ने उसको कंप्लेंट फाइल किया और वही आदमी साल 1.5 साल के अंदर जाके मजिस्ट्रेट से स्टे का ऑर्डर भी ले लिया। जब राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में ये सवाल पूछा मोदी जी से कि आप अदानी के बारे में आप मुँह खोलिए क्योंकि करोड़ों का घपला हुआ है, ये अवाम जानना चाहती है। जब मोदी सरकार से ये सवाल पूछा गया, जो मिनिस्टर्स होते हैं बीजेपी के, वो सभी लोग राहुल गांधी जी के ऊपर हावी हुए और सवालों का भौचार लगा दिए। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि मुझको जवाब देने का मौका दीजिए पार्लियामेंट में। इसी दौरान गुजरात से एक नोटिफिकेशन और फैसला जारी होता है कि राहुल गांधी जी को 2 साल के लिए सज़ा होती है। और जब 2 साल के लिए सज़ा होती है तो कानून बताता है कि 2 साल के लिए उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिज़ाइन देना पड़ता है। ये कानून के तहत उन्होंने राहुल गांधी जी को 2 साल के लिए निलंबित किया गया। तो जब बीजेपी से मोदी जी से सवाल पूछा जाता है तब ऐसे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं जो बीजेपी के खुद लीडर्स उसके जवाब नहीं देते। कभी यही फार्मूला कब बीजेपी के सभी MLAs और MP के ऊपर लगाया जाएगा, जो उनके पिछले हुए भाषण हैं, जो सभी तबकों को उन्होंने इस अंदाज में चोट पहुंचाई है कि एक भाषण का कभी केस रजिस्ट्रेशन हो गया तो मान लीजिए कि बीजेपी के सभी 70% जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे या MLAs रहेंगे पूरे जेल जाएंगे। तो बताना ये चाह रहे हैं हम गुलबर्गा के ज़मीन से कि मोदी गवर्नमेंट को आप जो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते हैं और वो इल्ज़ामात लगा के किसी भी आदमी के ऊपर आप केस ठोक देते हैं और इमीडिएटली ऐसा फ़ैसला लेके आते हैं जैसा कि ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया। तो हम लोग और एक बार मोदी गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं कि आपने जितने भी काम किए हैं वो सभी अवाम के हित में एक काम नहीं है। बस मोदी जी आप इतना बड़ा फ़ैसला ले सकते हैं, हर चीज़ के पीछे किसान का मुद्दा होने दो कि आपने सूट बूट की सरकार रखते हुए आपने ऐसे काले कानून 3 लागू किए थे किसानों के ऊपर, मगर वो 3 काले कानून आपको वापस लेने पड़े। तो मैं ये डिमांड करता हूँ कि सभी लोगों के ऊपर जो भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं, क्या ये नहीं है कि भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर कितने इल्ज़ामात लगा दिए गए 2014 के बाद, ये हम जानते हैं। मगर मुसलमान कम्युनिटी के ऊपर आपने हर चीज़, हर मुद्दों के ऊपर आपने उसको छेड़ने की कोशिश की है। तो हम लोग
ये डिमांड करते हैं कि आप लोगों से कि आप ये आपकी हरकतें बंद कीजिए, क्योंकि राहुल गांधी जी के ऊपर आपने 2 साल का निलंबित लगा गया, मगर हिंदुस्तान के अंदर कई राहुल गांधी ऐसे पैदा होंगे और आपको सवाल पूछते रहेंगे। ये आप ये मत भूलिए कि कई चेंजेस, कई हालातें के अंदर आपको फैसले वापस लेने पड़ते हैं, क्योंकि ये मामूला फैसला नहीं है जो आपने ये भी कर दिया कि राहुल गांधी जी का बंगला खाली करने के लिए। राहुल गांधी जी हर हिंदुस्तान के दिलों में बसे हुए हैं, यानी उनके जो दिल में बसे हुए हैं लोग, उनके अंदर वो घर खाली करने की आपकी क्षमता नहीं है। इसीलिए आपसे हम डिमांड करते हैं कि आपके 2014 के बाद आप पेट्रोल का प्राइस आसमान लेके गए, एलपीजी का प्राइस आसमान लेके गए, डीजल का प्राइस आसमान लेके गए, महंगाई आसमान के लिए। कभी आपके अंदर इतनी क्षमता है तो आपको हम ये अपील करते हैं, आपको डिमांड करते हैं कि जैसा राजस्थान में गैस सिलेंडर का प्राइस 500 रुपये है, आप कर्नाटक में करके बताइए, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्शन आने का मौका लगता है तो आप हर चीज़ के पैसे इतना बढ़ा देते हैं कि दाम बढ़ा देते हैं कि आम आदमी के ऊपर उसका बर्डन गिरे। जैसा इलेक्शंस डिक्लेयर हो जाते हैं तो आप सीधा उसका प्राइसिंग डाउन करते हैं। ये बताना चाहते हैं अवाम को कि हमने 5 रुपये कम कर दिए, हमने 10 रुपये कम कर दिए, हमने 15 रुपये कम कर दिए। ये सीधा है, आप कम नहीं किए हैं, आपने हर चीज़ को डबल कर दिया है और आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है। और आने वाले दिनों में ये बसवराज बोम्मई गवर्नमेंट चले जाने वाली है, क्योंकि ये बसवराज बोम्मई गवर्नमेंट ने कई आदमी के ऊपर बर्डन डाले हैं और जाते जाते आपने 4% रिजर्वेशन का जो दाव खेला है वो अवाम के ऊपर बर्डन है, क्योंकि आपने लिंगायत कम्युनिटी को 2% दिए हैं और आप ओकलिगा को 2% दिए हैं। तो ये बताइए, जब इन्होंने डिमांड ही नहीं किया है, मुसलमान का रिजर्वेशन लेके आपने उनको दे दिया है, तो हम लोग ना हम लिंगायत के ख़िलाफ़ हैं, ना हम ओकलिगा के ख़िलाफ़ हैं। हम खिलाफ़ हैं तो बीजेपी के गवर्नमेंट से ख़िलाफ़ है, क्योंकि इन्होंने जो फैसले लिए हैं वो हर कम्युनिटी के अंदर दरार डालने की कोशिश की है, क्योंकि इनकी सियासत और इनकी राजकारणी और इनका जो एजेंडा है अवाम को पता चल चुका है। क्योंकि आने वाले दिनों में अवाम पूरी मुत्तहिद है, अवाम एक है कि इनके बीजेपी के मुझको लगता है कि आने वाले दिनों में 15 सीट भी नहीं आएंगे, क्योंकि अवाम इतनी परेशान है कि सिर्फ इलेक्शन का डेट डिक्लेयर होने के लिए वेट कर रहे थे। आज डेट भी डिक्लेयर हो चुका है। अवाम पूरी मुत्तहिद है कि कर्नाटक में मान लीजिए कि पूरे कांग्रेस के ही एमएलएज आएंगे और बीजेपी के तो मुझको लगता है कि कई जगह इनके अकाउंट भी नहीं खुलेंगे और 15 एमएलएज भी आना इनके लिए मुश्किल है। शुक्रिया। आज हम लोग यहाँ महात्मा गांधी जी के स्टैच्यू के सामने प्रोटेस्ट करने बैठे हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार ने हमारे राहुल जी को डिस्क्वालीफाई किया है राज्यसभा मेंबरशिप से। तमाम कांग्रेस पार्टी तमाम गुस्से में है। अब आप देख रहे हैं दिल्ली में भी रोज प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये कांग्रेस बीजेपी सरकार यही करती आई है आज तक। हमारे दौर में जब 60-70 साल हम लोग कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत किया, ऐसा कभी भी नाइंसाफी कभी किसी के साथ नहीं हुई थी। ये लोगों का जंगल राज चल रहा है, जो दिल में आया करते हैं ये लोग। अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने देखा कि कारपोरेशन में क्या हुआ, बाहर के 5 MLC स्कूल आके यहाँ पर अपना मेयर बनाया गया है ये लोगों का। और तो ये इसी तरह से ये पावर में रहना चाहती है बेईमानी से। हम ये होने नहीं देंगे। आने वाले दिनों में पब्लिक बताएगी इनको, पब्लिक इनको सबक सिखाएगी। आने वाले 2023 के इलेक्शन में और 24 के इलेक्शन में जो भी है पब्लिक इनको सबक सिखाएगी। इनको अपनी कानून की सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि राहुल जी के साथ जो हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। राहुल जी को भी कई वक्त पप्पू कहा गया है, उन्होंने कभी रिएक्शन नहीं दिया उसका। हमारे पूरे मेंबर्स को, पार्लियामेंट के मेंबर्स पे मजाक बनाते हैं ये लोग, और खुद उनके ऊपर आती है बात तो उन लोगों को ये बात गुस्सा आता है। और किसी को बात करने की हमारे पास हमको आज़ादी नहीं है। अब यहाँ पर भी हाउस में भी जब प्रियंका के बात करते हैं, हालांकि फैक्ट्स की बात करते हैं प्रियंका के साथ, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। और वहाँ पर भी राहुल जी का भी माइक बंद कर दिया जाता है और बात करने पे ये उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। इसलिए हम सब बहुत
गुस्से में है पूरी कांग्रेस पार्टी। इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर राहुल जी का साथ देंगे। आने वाले दिनों में हम सब मिलकर बताएंगे बीजेपी सरकार को कि हम जय कांग्रेस कांग्रेस पक्षಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ, ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ, ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವರ್ಷದ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅಹಿತಕರಗಳನ್ನೇ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅನರ್ಹರಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯೂ ಕೂಡ ಬಿಡಬೇಕಂತ. हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार केंद्र सरकारಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಸದಸ್ಯತ್ವ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಸದಸ್ಯತ್ವ ರದ್ದುಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ